आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे और Y20 इजलास के हवाले से। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज मेगा U20 मशावरती इजलास का इनेकाद हुआ है और कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ समिट का आगाज आज LG मनोज सिन्हा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया गया है। हिंदुस्तान की G20 सदारत के तहत ही मौसमियाती तब्दीली की तारीखी तकरीब का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है और इजलास में करीब 10 ममालिक के कई नुमाइंदों ने शिरकत की है, मंदोबीन ने शिरकत की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के फनून, दस्तकारी, रिवायती माश के तरीकों और साइंसी इख्तियारात के गुलदस्ते की नुमाइश करने वाली एक मेगा पायदारी नुमाइश भी शामिल है। G20 ममालिक के बैनर्स और जम्मू कश्मीर के शानदार वर्से की होर्डिंग्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के हर तरफ से नजर आते हैं। इफ्तिताही तकरीब पर जहां पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर भी मौजूद थी, उसके साथ साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा, फैकल्टी मेंबरान भी वहां पर इस तकरीब में मौजूद थे। इसके साथ साथ ही करीब 10 ममालिक के मंदोबीन ने आज के इस यूथ समिट में शिरकत की है। I firmly believe that under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, India can really show to the world how to build a sustainable society. A society that will both be an economic powerhouse and a major contributor in restoring the delicate balance of nature. The sustainable living is Indian way of life. Long before the global community realized the importance of sustainable living, our forefathers dedicated Prithvi Sukta in Atharvaveda to the Mother Earth, highlighting its resources and urging the people to utilize them in a sustainable manner. Thousands years before, the term sustainable lifestyle was popularized across the globe. Yajurveda mentioned about harmonious living with earth, water, trees, and to prioritize the use of natural resources. It was not merely ideas, but a call for action. Every ancient Indian scripture called for selfless act, and therefore I call upon you to ensure that ideas to create productive harmony between human and nature are translated into action, and it must contribute to a better world. Our forefathers gave the principle of sustainable life and ecological sustainability. It is not simply some ideas or doctrine, but it is the best policy document and finest action plan ever made in the history of mankind. Today, I am happy to see
that more and more youth across the globe are talking about climate change. The number of books on climate change and environment has gone up from 19,010 to more than 400 titles today. It shows the growing awareness in the society, and slowly this fight against climate change is turning into the top priority for young generation. And I am confident youth will lead the world in offering pragmatic solutions to global challenges of the 21st century. Friends, civilizations have prospered because the nature was flourishing. The entire global family derived their sustenance from the rich ecosystem. However, the reality is neither opposite today. It is nature that is in the need of nourishment. इस खबर पे मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी से फैसल रियाज जुड़ चुके हैं। फैसल, यूथ समिट का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर मुनक्कद हुआ है, एलजी ने इसका इफ्तिताह किया है। वहाँ पर करीब 10 ममालिक के नुमाइंदों ने भी इस इजलास में शिरकत की है और जहाँ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की या दीगर जो भी लोग इसमें शरीक हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस यूथ समिट के हवाले से? देखिए, बिल्कुल गवर्नर, जिस तरह से आपने कहा कि या जिस तरह से गवर्नर अभी अपने स्पीच में कह रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट ये Y20 का यहाँ पे होना है, उसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड में जाए तो करीबन 4 पैनल डिस्कशन आज यहाँ पे हुआ, जिसमें तमाम तर जो ऑफिशियल्स है यहाँ के कश्मीर डिवीजन के या जम्मू डिवीजन के वो यहाँ पे थे। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो भी काफी ज्यादा स्कूल से आए थे, सेकेंडरी स्कूल से वो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे भी काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे आए थे। तो खासकर अभी हम जहाँ तक इस Y20 प्रोग्राम की बात करें तो ये जो आपको भी याद होगा कि इसका थीम जो है वो यही है कि जो क्लाइमेट चेंज है या उसके साथ साथ जो सस्टेनेबिलिटी की बात लगातार की जा रही है, किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी अपनी डे टू डे लाइफ में आ सकते हैं, किस तरीके से आगे जाके सस्टेनेबिलिटी जो है कारगर हो सकती है और किस तरीके से उससे फायदा उठा सकते हैं। अब जहाँ तक जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की, किस तरीके का उत्साह, उसमें तो काफी ज्यादा जो है उसमें ये देखा गया कि वो काफी ज्यादा खुश थे, वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें जो है शिरकत कर रहे थे और काफी ज्यादा डिस्कशन उनकी तरफ से की गई, क्वेश्चन उठाए गए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके थे या उसके साथ साथ जो बाकी सस्टेनेबिलिटी मैंने बात की उस चीज को किस तरीके से बरकरार रखा जाए, उस पर भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो अगर आज की शिरकत की बात करें तो करीबन 17 के करीब जो इंटरनेशनल डेलीगेट थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उसके साथ साथ नेशनल स्पीकर्स या उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पीकर्स यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपने स्पीच डिलीवर किए। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो भी यहाँ पे मौजूद थे और वो अभी उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पीच भी दिया जो कि आपने भी देखा। उसके साथ साथ वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं। वो अभी हमने उनसे कोशिश की थी बात करने की, जानने की कि आगे जाके किस तरीके का लाहेमल रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में G20 भी होने वाला है, तो उन्होंने बात करने से मना किया था। लेकिन इस वक्त अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं। जो डेलीगेट आए वो यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ जो नेशनल लेवल के हमारे डेलीगेट थे वो भी मौजूद है। और खासकर जो यहाँ पे खास चीज देखी गई कि एक लॉन्ग पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स की देखी गई जो मुख्तलिफ स्कूल से आए थे, खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल से, जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की। और पहले ही कहा गया था कि 4 पैनल डिस्कशन यहाँ पे होगा जिसको बाकायदा तौर पर इस वक्त भी किया जा रहा है और काफी ज्यादा बच्चे भी खुश है जिन्होंने इसमें शिरकत की और लगातार वो इसकी सराहना कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बाकी ऑफिशियल्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिले, क्योंकि पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कश्मीर डिवीजन को यहाँ पे मौजूद थी। टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स, टूरिज्म के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे मौजूद, और बाकी जो यूनिवर्सिटी का अमला था, खासकर जो यहाँ के रजिस्ट्रार है या वाइस चांसलर है वो यहाँ पे मौजूद थे। और एक अच्छा खासा इवेंट यहाँ पे रहा और जिस तरीके से ये बड़ा बेहतरीन इवेंट साबित हो उसी तरीके से आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो G20 का एक इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे जो 22, 23 और 24 से होने वाला है, वो भी एक बड़ा बेहतरीन इवेंट रहने वाला है और काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन उसमें भी रहने वाला है। पूरा होगा कि उनकी शिकायत राइट होने वाली और SKICT में एक कल्चरल प्रोग्राम भी बाकायदा तौर पर होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन ये जो आज का जो ये Y20 का था जिस तरीके से ये बड़ा बेहतरीन तरीके से ये आला यहाँ पे हुआ, उम्मीद ये है कि जो G20 की भी जो इवेंट होगी, समिट होगी, तो वो भी बड़ी खुश होगी। फिलहाल अगर आप उत्साह देखें यहाँ पे जो यहाँ पे लोग शिरकत कर रहे थे, खासकर उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा लिया,
उनमें काफी ज्यादा उत्साह था, उनमें काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं ईगरनेस थी, क्यूरियोसिटी थी कि वो कब इस इवेंट में शिरकत करें और अपने स्पीच जो है डिलीवर करें। जी रवर, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका, कश्मीर यूनिवर्सिटी से तफसीलात फराम कर रहे थे फैसल रियाज, जहां पर आज यूथ समिट का इजलास मुनक्कद हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर और मनोज सिन्हा की जानिब से इस इजलास का इफ्तिताह किया गया है। करीब 10 ममालिक के मंदुबीन ने इस इजलास में शिरकत की, उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा की तादाद, बड़ी तादाद ने भी इस इजलास में शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ साथ फैकल्टी मेंबरान और साथ ही साथ इंतजामी के अफसरान भी आज इस समिट में नजर आए हैं। वादी कश्मीर में एनआई की छापामारी आज भी मुतअद्दिद अजला के अंदर जारी है। आज अलसुबह ही एनआई की टीम ने जिला बडगाम के मुतअद्दिद मकामात पर छापामारी की है, जिनमें हाजुरा, नमथाल, वागम, जवालपुरा के अलावा बारामुला जिले के अंदर भी छापामारी हुई है। उसके साथ साथ ही हंदवारा के कई मकामात पर भी एनआई की जानिब से छापामारी और तलाशी के साथ साथ अफराद खाना से पूछताछ भी की गई है। ज़राए का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले में एनआई की जानिब से छापामारी हुई है और एनआई टीम के हमरा पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल थे। श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास से कबल ही कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज भी अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए केस के सिलसिले में कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी की है, जिसमें हाजुरा बडगाम गांव में एनआई ने बिलाल अहमद मीर नामी के एक शख्स के घर पर छापा मारा है और वागाम में खजर मोहम्मद नजार के घर की तलाशी ली गई है। नमतल बडगाम में एक रिहायशी मकान जिसका ताल्लुक मोहम्मद अशरफ वानी से है कि एनआई की तरफ से तलाशी ली गई है। उसके साथ साथ ही एनआई ने मोहम्मद यूसुफ मलिक जो कि दरमुना सैबुक के रहने वाले हैं, उनके घर पर भी तलाशी ली है। जवालपुरा के रहने वाले मोहम्मद शफी डार, उनके घर की भी तलाशी ली गई है। उसके साथ साथ ही बडगाम के फालसल इलाके में भी गुलाम मुस्तफ़ा गनी के घर पर भी रिहायशी मकान के अंदर भी तलाशी ली गई है। उसके साथ साथ ही हंदवारा में भी कई मकामात पर यह तलाशी ली गई है और जिला बारामुला में भी मुतअद्दिद मकामात पर एनआई की जानिब से छापामारी हुई है, तलाशी ली गई है। पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी एनआई टीम के हमरा थे। खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बडगाम से मोहम्मद अशरफ और बारामुला से इरशाद अहमद। पहले हम चलते हैं बारामुला इरशाद के पास। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, जो एनआई की छापामारी खत्म हुई है या कि अभी भी जारी है? देखिए, कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से लगातार जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर या कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि आज अलग सुबह लाई जाने के बाद जो है कौमी तहकीकाती एजेंसी ये बारामुला का कुछ इलाकों में जो है इन्होंने रुख दिया था और बाज़ाब्ता तौर पर तब से अभी तक जो है ये कार्रवाई जो है जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि देखा जाए कायनबाग संगरी के साथ साथ चाहे हम कनिसपोरा इलाके की बात करें या ओल्ड टाउन कदीम माला या इसके साथ साथ मौला जदीद है या इसके साथ साथ देखा जाए दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं, चाहे अधिकारों की बात करें या पूरी दस्ते जो है वो वहाँ पे तैनात है। हालांकि टेरर मामले के साथ साथ चाहे दीगर मामलों में यहाँ पे जो ये केस जो है ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। हालांकि 2020 या 2021, 2022 फिलहाल जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई इन इलाकों में और कुछ लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल फोन या कुछ दस्तावेज जो है वो रिकवर किए गए। और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इन इलाकों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल गवर्नर मैं आपको बता दे चलो ऑब्जर्वेशन क्योंकि तभी का रहने वाला है, इसके घर पे जो है आज सुबह छापामार कार्रवाई की गई। इस वक्त वो जारी है। जेवेद अहमद दोबी ये सईद करीम का रहने वाला है, ये वहाँ पे भी ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके साथ साथ खालिद अहमद जो कि कनिसपुरा का है और वहाँ पे भी इस वक्त जो है ये कार्रवाई जो है चल रही है। और देखा जाए कायनबाग के हवाले से बात करें, वहाँ पे भी इस वक्त जो है एनआई की तरफ से जो है ये कार्रवाई जारी है और तलाशी कार्रवाई के साथ साथ चाहे हम जो दस्तावेज जो है खंगाले जाते हैं, हालांकि उसमें अभी थोड़ी देर के बाद जो है एनआई की तरफ से प्रेस रिलीज भी आएगा और उसके बाद जो है पूरी तफसीलात जो है वो सामने आएगी। जरा बडगाम भी चलते हैं मोहम्मद अशरफ के पास। अशरफ, जरा अपडेट कीजिएगा, जिला बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों में भी छापामारी हुई है, कई अफराद के घर की तलाशी ली गई है, पूछताछ हुई है, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए गौर, जहां तक हम आज की एनआईए की कार्रवाई की बात करते हैं, लगातार हम देख रहे हैं बडगाम में पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार एनआईए की टीम मुख्तलिफ इलाकों में नुमादार होती है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही नसलापुरा के इलाके में भी एनआईए की तरफ से जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जो है कि वहां पर 8वीं क्लास के बच्चे की जो है वहां पर पूछताछ की गई। इस वक्त मैं फालसल बडगाम में हूँ, यहाँ पर भी आज जो है एनआईए की टीम करीबन 5 बजे सुबह जो यहाँ पर आई हुई है, और गुलाम मुस्तफा गनाई के घर में जो शख्स जो है यहाँ पर छापामार कार्रवाई चली। यही वो घर है, मैं अगर अपना कैमरा, ये वो घर है जहाँ पर सिर्फ एनआईए की टीम अंदर है और पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो यहाँ पर इनके साथ है, क्योंकि जब कहीं पर भी कोई एनआईए की कार्रवाई होती है तो पहले वहाँ पर लोकल पुलिस होता है या सीआरपीएफ, उनको लाया जाता है ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। इस वक्त की सूरत हाल है कि कई जगहों पे बडगाम में जो एनआईए की तरफ से रेड डाली जा रही थी, उनमें से कई जगहों पे तो रेड को खत्म किया गया है, मगर अभी भी कुछ इलाकों में लगातार जो है एनआईए की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई वो जारी है। ये फालसल का इलाका है, कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ पर गुलाम मुस्तफा जो है गनाई है, पेशे से एक टीचर है और इसके घर में जो है इस वक्त लगातार एनआईए की तरफ से कार्रवाई। अशरफ, जरा ये अपडेट कीजिएगा कि ये किन मामलों पर ये छापामारी जिला बडगाम के अंदर हो रही है? क्या कुछ इस हवाले से जरा का कहना है, किस्मत या टेरर फंडिंग या मिलिटेंसी के रिलेटेड कोई मामला है? देखिए गवार, जहां तक हम आज की एनआईए की कार्रवाई की बात करें तो ऐसा सूत्रों से पता चला है कि कुछ जमात के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनके घर में आज एनआईए की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई हो रही। आपको याद होगा इससे पहले जब बडगाम के ही एक खुरम परवेज जो कि एक एनजीओ चलाते जो इस जेल में बंद है, उसकी एक प्राइवेट ऑफिस जो कि दोंदुसा बेमना में था, वहां पर जब एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस था, वहां से काफी ज्यादा दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे थे। तब लग रहा था कि आने वाले दिनों में जो है बडगाम में एनआईए की तरफ से जो है कार्रवाई तेज होगी। उसी सिलसिले में आप देखें लगातार बडगाम में जो है एनआईए की तरफ से हफ्ते में चाहे हमें कहते दिन एक दिन छोटे एक दिन जो है एनआईए की तरफ से टीमें आती है, वो मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाई कर। इस वक्त की सूरत है कि कहा जा रहा है कि कई लोग जो यहाँ पर अभी चाहे हाजुड़ा हो, चाहे वागाम हो, चाहे चाडोरा का नमताहाल हो, या सेबू का इलाका दारमुना हो, या फालसल हो, जितने भी इलाके हैं जहाँ पर आज जवालापुरा हो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ इनमें से जो जवालापुरा का जो बंदा है वो इस वक्त कहीं पर नमाज पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जमात के साथ इन लोगों की वाबस्तगी रही हो, तभी आज जो है इस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मोहम्मद अशरफ बडगाम से और बारामूला से इरशाद अहमद तफसात फराम कर रहे थे एनआईए की जानिब से, जहां आज वस्ती जिला बडगाम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी हुई है। उसके साथ साथ ही बारामूला के अंदर भी और हंदवारा के अंदर भी एनआईए की जानिब से लगातार आज भी कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पूंछ की करते हैं। पूंछ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक फौजी एहलकार की मौत हुई है। हादसाती तौर गोली चलने की वजह से एक फौजी जवान की जान चली गई है। पूंछ के मेंढर इलाके से खबर आ रही है कि वहां पर फौजी एहलकार की हादसाती तौर गोली चलने से, उनकी जो सर्विस राइफल है उससे हादसाती तौर गोली चलने से उनकी मौत हुई है। गोली चलने के बाद अगरचे वो शदीद जख्मी हुआ है, उसके बाद ही अगरचे आर्मी यूनिट की जानिब से जो दीगर एहलकार उनके थे, साथी थे, उनकी जानिब से उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई है। ताम अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उसके बाद ही पुलिस की जानिब से जो तिबी और कानूनी लवाजमात है वो मुकम्मल किए गए हैं और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये वाकया पूंछ के मेंढर इलाके में पेश आया है, जहां पर एक फौजी जवान की सर्विस राइफल से हादसाती तौर गोली चलने से उनकी मौत वाकया हुई है। वस्ती जिला बडगाम में न्यू बस अड्डे में अगरचे काम काफी तेजी के साथ चल रहा था, मगर कुछ दिनों से इस बस अड्डे में काम रुका हुआ है, जिससे इस बस अड्डे की हालत मजीद अबतर हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि काम शुरू होते ही उन्हें उम्मीद थी कि इस काम को मुकम्मल करके आवाम को राहत मिलेगी, तां बदकिस्मती से काम रोक दिया गया है। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के सदर ने कहा है कि रुकूमत वागुजार न होने की सूरत में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। %40 काम हुआ है, अभी 60% काम बाकी है।
जो नवंबर और दिसंबर में इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद इस ठेकेदार जो भी कोई था इसमें, नाम तो मुझे नहीं पता कौन था इसमें, लेकिन मुझे शक था कि शायद ये सोच रहे थे कि आने वाला मार्च है तो हम पेमेंट निकालेंगे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा अड्डा है, यहाँ पे फुटपाथ अभी इनकम्प्लीट है। जो इन्होंने टावर बताया था, टावर को लाख बना देंगे, वो भी अभी इनकम्प्लीट है। सारा इन्होंने बिल्कुल 2-3 महीने से बिल्कुल ठप पड़ा है। आप यहाँ का फुटपाथ भी देख सकते हो, बिल्कुल घटिया है। इन्होंने पिछली बार हमें एक वादा किया था, उस वक्त जो डीसी साहब थे, पुराने वाले डीसी साहब, उसने कहा था आप टेंशन मत लो, मैं इसको एक मॉडल के तौर पे ये पूरे श्रीनगर में नंबर 1 बडगाम का ये जो अड्डा है होना चाहिए। लेकिन 2-3 महीने से बिल्कुल ठप पड़ा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन एसएमसी से गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये हमारा चेहरा है। और यहाँ पे और एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे दूध पथरी का टूरिज़्म इधर से जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो चेहरा है, मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके इसमें काम लगाए। नहीं, इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया था दिसंबर जनवरी में, जब ऑफ सीज़न रहता था तब इन्होंने काम शुरू किया था, हम बहुत खुश थे। लेकिन फिर शायद मार्च में उन्होंने बिल्स निकाले, फिर मैस किया है सबको। आप देखिए कि ये टूरिस्ट ये जो दूध पथरी है उसका पहला पड़ाव बडगाम डिस्ट्रिक्ट का अड्डा होता है। लेकिन ये जो अब उधर से टूरिस्ट आते हैं, आप देखो ट्रैफिक मैस कितना है, इन्होंने जूं का तू वही रखा है, ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब हम इस्तदा करते हैं हायर अथॉरिटी से कि आप इसमें प्लीज़ देखिए क्या बात है, क्यों बंद काम है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बात है, आप वो काम चालू कीजिए। और इसका जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब इसका वो आप देख लीजिए, इसका प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए और एक नए सिरे से काम कीजिए, फिर ये अच्छा रहना चाहिए इसके लिए। 40% काम हुआ है, अभी 60% काम बाकी है। जो सरकारी आश्वासन हमको दिया गया था कि आप जो जितना दौड़ेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, मगर वो सिर्फ वादा था। जो हमारी सीलिंग थी उसी हिसाब से पैसा आया वहाँ से। जो ठेकेदारों ने एक्स्ट्रा काम किया था वो पैसा अभी आना बाकी है। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे मास्टर प्लान श्रीनगर में अभी काम चल रहा है, सिटी ब्यूटीफुल बन रही है, ये टाउनों की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे हमारे गवर्नमेंट इंतज़ामिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हमारे लिए भी पैसे वागुजार करेंगे। वो इसीलिए बांध पड़े हैं कि ठेकेदार हमारे यहाँ उतने रिसोर्सेबल नहीं है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। जब तक उनको वहाँ से पैसा नहीं हम देंगे तो वो काम कैसे करेंगे। उन्होंने काम बंद कर दिया है, इसी वजह से काम रुके पड़े हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जहां मुल्क भर में हालात कशीदा और पुरतनाव है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है, जिसमें इसकी नुमाया रहनुमाओं की हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी से कबल उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट में बताया गया है कि उन्हें रात गए हिरासत में लिया गया है। ये तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हमने सब ने मिलकर इसमें अपना हिस्सा डाला है। इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा था और की है। अगर मुझे मजीद मोहलत नहीं मिलती तो फिर मैं ये पैगाम देके जाना चाहता हूँ, ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी जद्दोजहद है इसको जारी रहना चाहिए। इमरान खान साहब की आज़ादी तक आप अपनी जस्तजू में गामजन रहें। हम इस मुल्क से प्यार है, हमने दयानतदारी से इस मुल्क की जर्रे जर्रे से मट्टी से प्यार किया है। वैसे वजीर खारजा, मैंने हर मैदान हर मोड़ पर पाकिस्तान के मफादात का दिफा किया। वैसियत सियासतदान के मुझे अमली सियासत में 40 साल हो गए और इन 40 सालों में मैंने दयानतदारी से ईमानदारी से सियासत की और मेरा दामन और मेरे हाथ साफ हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसा इश्तियाल अंगेजी का न बयान दिया है। मुझ पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं मन घड़त हैं, झूठ पर मबनी हैं, वो बयानिया हकीकत पर मबनी नहीं है। सियासी इंतकाम की उससे बू आ रही है और हम सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का अपना इंसाफ का निज़ाम है और मुझे यकीन है कि
इंशाअल्लाह ये हमारी तहरीक, हमारी जद्दोजहद अपनी मंजिल को हासिल करेगी। ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वो शहरी जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है वो तारीख में याद रहेंगे। मुझे बेहद सदमा है उन शहदा का जो 50 के लगभग शहादतें हो गई हैं। मुझे बेपनाह दुख है उन लोगों का जो जख्मी हुए, जिन घरों में सफ़े मातम बिछी है। निहत्ते बेगुनाह लोग थे और लेकिन एक बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियां दरकार होती हैं। हम सब ने अपना हिस्सा मिलाना है। मुझे इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया, बड़ी इज्जत दी और बड़ी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।